آپ کو بتائیں فیصل آباد ڈویژن میں گرد آلود ہوائیں، موسلادھار بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ تیز ہوائیں چلنے سے متعدد علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی۔ چنیوٹ میں بھی فیسکو کے متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ حالیہ بارشوں کے پیش نظر پی ڈی ایم اے نے بھی الرٹ جاری کر دیا۔ فیصل آباد میں گرد آلود ہوائیں اور تیز بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ چک 190، چک 191، ملوانی سمیت مضافاتی علاقوں میں بوندا باندی۔ موسم خوشگوار ہونے پر شہریوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ آندھی اور بارش سے شہر کے متعدد فیڈر ٹرپ کر گئے، جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا۔ جنگ میں آندھی، شہر گرد و نواح کو مٹی کی چادر نے لپیٹ لیا۔ درجہ حرارت میں معمولی کمی ریکارڈ۔ صبح کے مقابلے میں درجہ حرارت 3 درجہ کم ہو کر 36 ڈگری پر آ گیا۔ آندھی کے بعد متعدد علاقوں میں بجلی کی بندش کا بھی سامنا ہے۔ دھجی روڈ، ریل بازار، کھیتاں والا بازار، محلہ سلطان والا، فوارہ چوک، شہید روڈ کے علاقوں میں بجلی بند ہے۔ شورکوٹ اور گرد و نواح میں بھی تیز آندھی شروع ہوتے ہی بجلی غائب ہو گئی۔ چنیوٹ میں شدید آندھی اور طوفان کے بعد بارش سے موسم قدرے خوشگوار ہو گیا۔ فیسکو کے کئی فیڈر ٹرپ کر گئے، جس سے شہر میں بجلی بند ہو گئی۔ ٹوبا ٹیک سنگھ میں آندھی کے باعث پورا شہر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ دوسری جانب حالیہ بارشوں کے پیش نظر پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے نکاسیات کے لیے تمام انتظامی محکموں کو فیلڈ میں رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ڈی جی عمران قریشی نے ضلع انتظامیہ واسط میونسپل اداروں کے افسران کو کوارڈینیشن میں بہتری لانے کے لیے اقدامات کا حکم جاری کیا ہے۔ ہنگامی صورتحال میں شہریوں کو مدد کے لیے پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اعلانات کام نہ آئے، حقیقی اقدامات کی ضرورت ہے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر گزشتہ سال کی نسبت مقررہ ہدف سے پیچھے ہے۔ سالانہ خسارہ 3 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا۔ حکومت کی جانب سے آئندہ برآمدات کا ہدف 100 ارب ڈالر مقرر۔ چیئرمین ہوزری مینوفیکچررز ایسوسی ایشن خواجہ امجد کہتے ہیں سنجیدگی لے آئیں تو ہم خسارے سے نکل سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں محمد بلال ڈوگر کی اس رپورٹ میں۔ حکومتی اعلانات کسی کام نہ آئے، حقیقی اقدامات کی ضرورت ہے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کا سالانہ خسارہ 3 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا۔ گزشتہ مالی سال کے دوران شعبہ ٹیکسٹائل اپنا ٹارگٹ حاصل کرنے کی بجائے سابقہ ہدف سے بھی پیچھے رہ گیا۔ حکومت کی جانب سے بجٹ میں نئے ٹیکس سمیت درآمدات پر ریلیف دیا گیا۔ برآمد کاروں کو سہولیات دینے اور برآمدات بڑھانے کا عزم بھی ظاہر کیا گیا۔ ایکسپورٹرز کا کہنا تھا کہ اعلانات سے کچھ نہیں ہوتا، حقیقی اقدامات بھی ہونے چاہیے۔ چیئرمین پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن خواجہ امجد نے کہا کہ خسارے سے نکلنے کے لیے سنجیدگی ضروری ہے۔ 100 ارب ڈالر کا ہدف مذاق ہے، لیکن اگر سہولیات ہوں تو اچھا ٹارگٹ پورا ہو سکتا ہے۔ 100 بلین کا ٹارگٹ ہے، وہ بالکل فکٹیشیس ہے، لیکن کوئی بھی ریزنیبل ٹارگٹ کو ہم اچیو کر سکتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ جو ڈکلائننگ موڈ میں ہے انڈسٹری چلی گئی ہے، اسپیشلی ایکسپورٹ انڈسٹری، اس کو کم از کم پازیٹیو پلس موڈ میں ہم لے کے جا سکتے ہیں۔ برآمد کاروں کا کہنا تھا کہ اگر تسلسل ہو تو خسارے میں جانے والی برآمدات کو منافع میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین وحید محمود کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، سٹی 41، فیصل آباد۔ وفاقی بجٹ میں امپورٹڈ گاڑیوں کی ٹیکس ڈیوٹی میں 5% کمی کا اعلان۔ کار ڈیلرز کہتے ہیں 1300 سی سی سے زیادہ گاڑیوں کی ٹیکس ڈیوٹی سے کمی سے کچھ نہیں ہوگا۔ گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے کاروبار مکمل تباہ ہو چکا ہے۔ لوکل گاڑیوں کی قیمتیں اور 660 سی سی امپورٹڈ گاڑیوں کی ڈیوٹی کم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ بجٹ میں امپورٹڈ گاڑیوں کی ٹیکس ڈیوٹی میں 5% کمی کر دی گئی، جس سے 1300 سی سی سے زیادہ گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی آئے گی۔ ڈیلرز کہتے ہیں امپورٹڈ گاڑیوں کی ٹیکس ڈیوٹی سے کاروبار میں مثبت اثرات نہیں آئیں گے۔ لوکل گاڑیوں کے ٹیکسز کم کیے جائیں۔ لوکل جو گاڑیاں ہیں ان کی پرائس اتنی زیادہ ہے، یہ بھی ہر بندے کے پاس کی بات نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں 650 سی سی جو گاڑیاں ہیں ان کی کوئی پرائس کم ہونی چاہیے تھی جاپانی کی۔ 1300 ہر بندہ لیتا کوئی نہیں، اس لیے میرا تو یہ خیال ہے کہ اتنا کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کو۔ کار ڈیلرز کہتے ہیں گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے کاروبار مکمل تباہ ہو چکا ہے۔ بجٹ کے بعد کاروبار میں بہتری کی امید تھی، مگر حکومت نے کوئی ریلیف نہیں دیا۔ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، گڈی اتنی مہنگی ہو گئی، کسٹمر 20 واری سوچتا تو پھر اس مارکیٹ نو آندا ہے۔ مہنگائی دی وجہ، پٹرول دی وجہ تو بالکل ڈیڈ پئی مارکیٹ۔ بجٹ نو ڈیگ رہے سی، بجٹ دے نال بھی کوئی فرق نہیں پیا گا۔ کار ڈیلرز نے لوکل گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی اور 600 سی سی امپورٹڈ گاڑیوں کی ڈیوٹی کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین شہزیب علی کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41، فیصل آباد۔ الیکٹرانکس کے کاروبار سے وابستہ تاجر بھی وفاقی بجٹ سے مایوس ہیں۔ بجٹ میں الیکٹرانکس کے کاروبار کو نظر انداز کرنے پر شدید پریشانی کا اظہار کر دیا گیا۔ کہتے ہیں ٹیکس 17% سے بڑھا کر 25% کر دیا گیا۔ ہمیں بجٹ میں ریلیف ملنے کی امید تھی، مگر حکومت نے ٹیکسز میں اضافہ کر کے انڈسٹری کو ڈبو دیا۔ الیکٹرانکس کے کاروبار سے وابستہ تاجروں نے وفاقی بجٹ مسترد کر دیا۔ بجٹ میں الیکٹرانکس اشیاء پر ٹیکس میں اضافے پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ گروپ لیڈر فیصل آباد الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن رانا سکندر اعظم خان کہتے ہیں حکومت نے کوئی ریلیف نہیں دیا۔ کوئی ریلیف نہیں دیا گیا، خاص کر کے الیکٹرانکس آئٹم پہ، بلکہ 17% سیل ٹیکس کی بجائے
25% सेल टैक्स जो है नाफज कर दिया गया, और जिसकी वजह से पहले ही हमारी तमाम अशिया, उनमें मोटरसाइकिल हो, रेफ्रिजरेटर हो, अपना एसी हो या एयर कूलर हो या कोई भी आइटम, और हत्ता के वाशिंग मशीन, इस्त्री और पंखा तक का, वो इतने महंगे हो गए हैं कि अब वो गरीब आदमी की पहुंच से ही बाहर हो गया। ताजरों ने बजट के हवाले से आपस में सर जोड़ लिए। राना सिकंदर आजम खान की ज़ेर सदारत ताजरों का बजट के हवाले से हंगामी इजलास मुनक्कद हुआ। राना सिकंदर आजम खान ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार पहले ही महंगाई की वजह से ठप हो चुका है। अब टैक्स भी 17% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है, जिससे कारोबार मजीद मुतासर होगा। महंगाई का ऐसा तूफान आएगा, पहले ही हम बहुत पिसे हुए थे और पिछले एक साल से जो हमारे मामलात हैं वो बड़े ख़राब चल रहे थे। इस हुकूमत ने इस बजट में, हम भी समझते थे कोई रिलीफ देंगे कि 17% की बजाय और इसको कम करेंगे, लेकिन इन्होंने 25% कर दिया है। ताजरों ने बजट की मंजूरी से कबल हुकूमत से नजरसानी करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। पंजाब में नए माली साल के लिए स्टैंप ड्यूटी की मद में 64 अरब रुपए की आमदन जमा करने का हदफ। महकमा खजाना पंजाब की स्टैंप ड्यूटी की शरह में इजाफे की तजवीज़। रवा माली साल के तरमीम शुदा अहदाफ के मुकाबले में नए माली साल 64 अरब रुपए का हदफ होगा। नए माली साल के लिए स्टैंप ड्यूटी की मद में 64 अरब आमदन जमा करने का हदफ। महकमा खजाना पंजाब की जानिब से स्टैंप ड्यूटी की शरह में इजाफे की तजवीज़। तरमीम शुदा अहदाफ के मुकाबले में नई माली साल 64 अरब रुपए का हदफ होगा। यानी हल्फी की कीमत 100 से 300 रुपए मुकर्रर करने की सिफारिशात। प्रॉपर्टी की फरोख्त पर 3000 रुपए की स्टैंप ड्यूटी मुकर्रर करने की भी सिफारिशात। किसी मुआहदे के लिए स्टैंप पेपर की ड्यूटी 3 से 30,000 रुपए करने की सिफारिश की गई है। पावर ऑफ अटार्नी के लिए स्टैंप ड्यूटी की फीस 3000 रुपए करने की सिफारिशात। RMC कमेटी की तजावीज़ पर स्टैंप ड्यूटी पर 6.6 अरब इजाफे का तखमीना है। आपको बताएं, वफाकी हुकूमत का इंपोर्टेड यूरिया के हवाले से 6 अरब की सब्सिडी का ऐलान। झांग की खाद डीलर एसोसिएशन ने फैसले को खुशाइन करार दे दिया। फैसले से यूरिया खाद की कीमतों में इजाफे की अफवाहें दम तोड़ गईं। काश्तकारों ने भी फैसले का खैर मकदम किया। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। वफाकी बजट में दरामदी यूरिया खाद पर सब्सिडी के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस करने का ऐलान किया गया है। यूरिया खाद की तलब और रसद में वाज़ेह फर्क होने से कीमतें बढ़ जाती थीं, जिससे काश्तकारों की मुश्किलात का सामना था। हुकूमत ने काश्तकारों की मुश्किलात के पेश नज़र खाद की इंपोर्ट में सब्सिडी देने का फैसला किया है। सदर फर्टिलाइजर एसोसिएशन मेहर अफजल का कहना था कि हुकूमती इकदाम से मार्केट में खाद की कीमतें मुस्तहकम होंगी। गवर्नमेंट ने अच्छा इकदाम किया है। इंपोर्टेड यूरिया पर सब्सिडी का उन्होंने ऐलान कर दिया है। वो जिस वक्त चाहे मर्जी मंगवा सकते हैं और मार्केट में रेट भी स्टेबल रहेंगे और अनअवेलेबिलिटी का खतरा भी खत्म हो गया है। दरामदी यूरिया खाद पर सब्सिडी मिलने से किसानों को खाद की किल्लत से छुटकारा मिल सकेगा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। सूबे के 36 लाख के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज के लिए 3 अरब 74 करोड़ जारी कर दिए गए। फैसलाबाद के लिए 19 करोड़ 64 लाख जारी हुए। जंग के लिए 12 करोड़ 58 लाख जारी। उधर सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स की मुस्तकिली का मामला 7 साल भी हल न हो सका। इस्तादज़ा का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर तनख्वाहें बंद होने का खदशा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज के लिए 3 अरब 74 करोड़ रुपए जारी। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को 19 करोड़ 64 लाख रुपए मिलेंगे। जंग डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के लिए 12 करोड़ 58 लाख रुपए जारी। चिन्योट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के लिए 5 करोड़ 29 लाख रुपए दिए गए। प्राइमरी, एलिमेंट्री, हायर सेकेंडरी स्कूल्स के रुके हुए फंड्स जारी। महकमा खजाना पंजाब से डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर्स को फंड्स के इजरा के लिए मुरासले जारी। सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स की मुस्तकिली का मामला। इस्तादज़ा को 7 साल सर्विस मुकम्मल करने के बावजूद रेगुलर न किया जा सका। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर तनख्वाहें बंद होने का खदशा। महकमा तालीम फैसलाबाद ने 31 टीचर्स को कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल की तौसीह दे दी। पंजाब हुकूमत की तरफ से 2016 में भर्ती होने सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स को 7 साल बाद भी नौकरियों पर मुस्तकिल न किया जा सका, जिसके बायस अक्सर इस्तादज़ा के कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत रवा माह खत्म हो रही थी। इस्तादज़ा का रवा माह कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर तनख्वाहें बंद होने का खदशा था, जिस पर महकमा तालीम फैसलाबाद ने 31 टीचर्स को कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल की तौसीह दे दी। पंजाब में मुस्तकिल न होने वाले इस्तादज़ा की तादाद 11,000 से जायद है। फैसलाबाद में पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी का डाटा कंप्यूटराइज न हो सका। हजारों मकानात का अंदराज आज भी सरकारी वेबसाइट पर नहीं हो सका। अमले की कमी के बायस मकानात और प्लाट कंप्यूटराइज नहीं हो पा रहे। फैसलाबाद में पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी का डाटा कंप्यूटराइज ना हो सका। हजारों मकानात का इंदराज आज भी सरकारी वेबसाइट पर नहीं हो सका। अमले की कमी के बायस मकानात और प्लाट कंप्यूटराइज नहीं हो पा रहे। इन स्कीमों में गुलाम मोहम्मदाबाद लेबर कॉलोनी, समंदरी पीपल्स कॉलोनी एक्सटेंशन शामिल हैं। 238 हाउसिंग स्कीमों में से एक भी मकान कंप्यूटराइज इंदराज नहीं हुआ। फाटा के मजमूई तौर पर 14 स्कीमें, जिनमें मौजूदा मकानों की तादाद 21,783 है। हाल सिर्फ 9,321 मकामात कंप्यूटराइज किए जा सके।
हुकूमत का कपास की बेहतर पैदावार और काश्तकारों को सहूलियात की फराहमी के लिए तारीखी कदम। गल्ला मंडी झंग में किसानों के लिए सहूलियत बाजार और खिदमत मराकज कायम कर दिए गए, जिसमें काश्तकारों को सस्ते और मयारी पीच अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। अवैस खान की रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर किसानों को सहूलियात की फराहमी के लिए महकमा ज़राअत ने इकदाम शुरू कर दिए। काश्तकारों को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए सहूलत बाजार कायम किए गए हैं, जिसमें कपास के काश्तकारों को मयारी और सस्ते बीज, खाद और अद्वियात की फराहमी मुमकिन की जाएगी। खिदमत मरकज में ज़राअत और जिला इंतजामिया के नुमाइंदे भी मौजूद रहेंगे, जो काश्तकारों के मसाइल को फौरी हल मुमकिन करेंगे। कपास की चुनाई के वक्त सरकारी कीमतों पर खरीदारी के हवाले से भी मदद फराहम की जाएगी। पूरे पंजाब में कॉटन कैंपेन लॉन्च की गई है गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें टारगेट मिला था 42,000 एकड़ का डिस्ट्रिक्ट जंग के लिए, वो इस वक्त तक मुकम्मल हो चुका है। 42,798 तक 43,000 के करीब जो है वो कॉटन एरिया जो है वो अचीव कर लिया हुआ है। तो अब हमारा आगे जो है टारगेट है वो है हमने इसका क्रॉप को बचाना कैसे है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि जो है ना जो क्वालिटी पेस्टिसाइड हैं वो ज़मींदार तक सस्ते रेट पे जो ओरिजिनल रेट उस पर मिलनी चाहिए। काश्तकारों और पेस्टिसाइड डीलर्स ने हुकूमती इकदाम को खुशाइन करार दिया। मरकजी जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान महर खलील के मुताबिक सहूलियत बाजार में आगाही के साथ साथ बेहतर अद्वियात और बीजों की फराहमी मुमकिन हो पाएगी। किसानों को जब तक हम भरपूर तरीके से आगाही नहीं देंगे पेस्टिसाइड के हवाले से तो टारगेट पूरा नहीं हो सकता। कॉटन को हम लेते हैं ना, तो ये कॉटन के अंदर काफ़ी ऐसी बीमारी वगैरह आती हैं जिसको अब कंट्रोल करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह महकमा ज़राअत ने हमारे पंजाब के अंदर अब यहाँ पे एसी साहब हैं या दूसरे डायरेक्टर्स साहब तमाम ने ये आगाही के लिए अब ये बाजार लगाया। सहूलत बाजार में काश्तकारों को ज़रूरी अद्वियात 10% कमी के साथ फराहम की जाएंगी। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। PHA फैसलाबाद रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मुतहरिक पार्कों में कैंटीन, झूलों, पार्क स्टैंड की नीलामी का फैसला किया गया। ठेके देने के लिए बोली की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। उम्मीदवार शेड्यूल प्राइस का 10% पे ऑर्डर के जरिए अदा करके बोली का हिस्सा बन सकेंगे। माली बहरान में डूबे PHA फैसलाबाद को बिलाखिर रेवेन्यू बढ़ाने का ख्याल आ ही गया। 44 पार्कों में कैंटीनें, झूलों, पार्किंग स्टैंड की नीलामी का फैसला कर लिया। ठेके देने के लिए बोली की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। उम्मीदवार शेड्यूल प्राइस का 10% पे ऑर्डर के जरिए अदा करके बोली का हिस्सा बन सकेंगे। डायरेक्टर PRPHA वसीम अब्बास का कहना था कि 44 पार्कों में कैंटीन ठेके की नीलामी 14 जून को होगी। 19 पार्कों में पार्किंग ठेके की बोली 15 जून को होगी। 25 पार्कों में बच्चों के प्ले एरिया ठेके की बोली 16 जून को होगी। उनका कहना था कि उम्मीदवारों को बोली तारीख से कबल शेड्यूल प्राइस का 10% पे ऑर्डर जमा करवाना होगा। ईद कुर्बान फैसलाबाद के इलाका बाईपास खानेवाला में बकर मंडी सच गई। बकरा मंडी में मुख्तलिफ इक़साम के बकरों की आमद, राजनपुरी, नवाबशाही और दीगर नस्लों के खूबसूरत बकरे मंडी की जीनत बन गए। शहरी ईद कुर्बान के लिए खूबसूरत और दिलकश बकरे खरीदते दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानते हैं खज़ा लियाकत की रिपोर्ट में। कुर्बानी के जानवरों की मंडियों में एंट्री हो गई। फैसलाबाद के इलाके बाईपास खानोवाला बकरा मंडी में रौनकें लग गईं। बकरा मंडी में बकरों की मुख्तलिफ इक़साम पहुंच रही हैं। राजनपुरी, नवाबशाही और दोगला किस्म के खूबसूरत बकरे मंडी की जीनत बन गए। शहरी आसमान से बातें करती कीमतों से खासे फिक्रमंद हैं। शहरियों का कहना था कि ईद के लिए बकरे खरीदने आए हैं। बकरों की कीमत आसमान से बातें कर रही है। अच्छा बकरा 1 लाख रुपए तक मिल रहा है। मंडी बहुत ज्यादा तेज है। ये तकरीबन 1.5-2 लाख रुपया एक बकरे तो मांग रहे हैं, लेकिन बकरी कुर्बानी तो करनी है, इसीलिए तो ये इंशाल्लाह पसंद आ जाएगा तो इंशाल्लाह लेते जाएंगे। दूसरी जानिब व्यापारी भी बढ़ती महंगाई के बाद कीमतें बढ़ाने पर मजबूर हैं। व्यापारियों का कहना था कि जानवरों को संभालना बहुत मुश्किल है। सारा साल अच्छी खुराक देकर इन्हें बड़ा किया है। इनके अखराजात बहुत ज्यादा हैं। बकरा मंडी पर राजनपुरी, नवाब शाही और दोगला बकरा भी जो है मौजूद हैं। देखने में जितने दिलचस्प नजर आ रहे हैं उनके नाम भी इतने ही खूबसूरत हैं। कैमरामैन इशफाक के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। सदर अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्ट्रेड ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का की जानिब से अंजुमन आरतिया गला मंडी की नौमंतखब काबीना के एजाज में इशाया दिया गया। शहर भर से ताजरों की कसीर तादाद में शिरकत थी। देखते हैं फजील अहमद की रिपोर्ट। सदर अंजुमन ताजरा सिटी रजिस्टर्ड ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का की जानिब से अंजुमन आरतियां गल्ला मंडी के 9 मुंतखब काबीना के एजाज में इशाइये का अहतमाम किया गया। गल्ला मंडी के चेयरमैन राना तैयब, सदर मंजूर कादर, जनरल सेक्रेटरी महमूद रहमानी ने शिरकत की। गल्ला मंडी की 9 मुंतखब काबीना का अंजुमन ताजरा सिटी रजिस्टर्ड में शमूलियत का ऐलान। ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का ने गल्ला मंडी की 9 मुंतखब काबीना को खुशामदीद कहा। उसमें भी एक मसला आता है कि जो मैन्युफैक्चरर है या जो दुकानदार है वो उसके जब
वसाइल इतने नहीं होंगे तो वो इतनी तनख्वाह कैसे दे सकेगा। उसके लिए भी इन्हें कोई लाहेअमल बनाना चाहिए। और मरकजी तंजीम ताजना पाकिस्तान के सदर काशिफ चौधरी ने तकरीब में खसूसी शिरकत की। उन्होंने गल्ला मंडी की मुंतखब होने वाली कबीना को तंजीम ताजना पाकिस्तान और अंजमन ताजना सिटी रजिस्टर में शमूलियत पर मुबारकबाद दी। बोले हुकूमत ने बजट में ताजरों को कोई रिलीफ नहीं दिया। मार्केटों के अंदर मौजूद वीरानियां, महंगाई की बढ़ती हुई लहर, यहाँ तक कि अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें एक आम पाकिस्तानी की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। और एक ऐसी सूरत हाल और मंजर के अंदर कि जब IMF के साथ हमारा 9वां जायजा इजलास और स्टाफ लेवल मुआहदे के जरिए आखिरी किस्त हमें नहीं मिल सकी। अंजमन ताजना सिटी रजिस्टर से सुहेल न्याज तूर, मियां रियाज शाहिद, शेख सईद, मिर्जा मजर सदीक बेग, मिर्जा अशरफ मुगल, मिर्जा तालिब सदीक बेग शरीक हुए। वाइस चेयरमैन उसामा सईद अवान, चौधरी शाहिद नदीम, मियां अशरफ मिट्ठू, राना वहाब, सिटी क्लास बोर्ड से अब्बास अहमद शेख और अमजद अकील शेख ने भी शिरकत की। कैमरामैन तस्वर अब्बास के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। खबरें आपने जानी, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 41, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।